پاکستان میں تخریب کاری کے لیے بھارتی فوج اور ایجنسیاں پوری طرح متحرک۔ دہشت گردی کے لیے بھارتی سہولت کاری کے مستند شواہد سامنے آ گئے۔ جہلم سے گرفتار دہشت گرد مجید کے موبائل فون اور ڈرون فورنزک کے بعد ناقابل تردید شواہد منظر عام پر۔ دہشت گرد بھارتی فوجی افسر اور ہینڈلر سے رابطے میں تھا۔ مجید اور بھارتی فوجی افسران کی واٹس ایپ گفتگو میں ہوش ربا انکشافات۔ بلوچستان اور دیگر صوبوں میں بھارتی ایجنسیاں تخریب کاری کی کارروائیوں میں تربیت دیتی ہیں۔ ان شواہد کے بعد عالمی سطح پر بھارت کا نام فیٹف میں شامل کرنا ناگزیر ہو چکا ہے۔ ملکی دفاع ناقابل تسخیر بنانے کی جانب ایک اور سنگ میل عبور۔ پاکستان کا فتح میزائل کا کامیاب تجربہ۔ فتح میزائل کی رینج 120 کلومیٹر۔ میزائل زمین سے زمین تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ فتح میزائل جدید نیویگیشن سسٹم سے لیس اور اپنے ہدف کو بہتر اور درست انداز میں نشانہ بنانے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے۔ ISPR زمین سے زمین پر وار کرنے والے فتح میزائل کی کامیاب تربیت کی لانچ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی مبارکباد۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف آرمی چیف سائنسدانوں اور انجینئرز کی کوششوں کو سراہا۔ وزیر اعظم کا پاک فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور ملک کی دفاع کے لیے بھرپور تیاری پر اطمینان کا اظہار۔ تربیتی لانچ کی کامیابی سے واضح ہے کہ پاکستان کا دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ شہباز شریف صدر آصف علی زرداری کی فتح میزائل کے کامیاب تجربے پر سائنسدانوں اور انجینئرز کو مبارکباد۔ زمین سے زمین پر مار کرنے والے فتح میزائل کے کامیاب ٹیسٹ پر قوم کو مبارکباد۔ ملک کی دفاع کو مضبوط بنانے کے لیے سیکیورٹی فورسز، سائنسدانوں اور انجینئرز کی کاوشوں کو سراہا۔ صدر مملکت کا ملک کی سلامتی اور دفاع کو یقینی بنانے کے قومی عزم کا اعادہ۔ پاکستان کی علاقائی سالمیت اور خود مختاری ہر شے پر مقدم۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کی کامیاب میزائل تجربے پر مبارکباد۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کامیاب تجربے پر سائنسدانوں اور انجینئرز کو مبارکباد دی۔ کسی بھی جارحیت کو ناکام بنانے کے لیے پاک فوج کی آپریشنل تیاریوں اور تکنیکی مہارت پر مکمل اعتماد کا اظہار۔ ISPR جنوبی ایشیا میں امن کے لیے سفارتی کوششیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی دفتر خارجہ آمد۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے ایرانی وزیر خارجہ کا پرتپاک استقبال کیا۔ دونوں رہنما دو طرفہ تعلقات، علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ بھارت کا جھوٹا اور بے بنیاد پروپیگنڈا بے نقاب، زمینی حقائق میڈیا کے سامنے پیش۔ عالمی میڈیا نے بھارتی الزامات کو مسترد کر دیا۔ بھارت جو مقامات خیالی دہشت گرد کیمپس قرار دیتا رہا وہ عام شہری آبادی کے علاقے ہیں۔ کسی بھی بھارتی جارحیت کا فوری اور منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا بین الاقوامی و مقامی میڈیا کے ہمراہ کنٹرول لائن کا دورہ۔ بھارت کی پاکستان پر الزام تراشی کوئی نئی بات نہیں۔ میڈیا نمائندوں کو ان مخصوص مقامات پر لے جایا گیا جنہیں بھارت کی جانب سے مبینہ دہشت گردی کے ٹھکانے قرار دیا گیا تھا۔ امن اور خوشحالی ہم سب کا مشترکہ ہدف ہونا چاہیے۔ بھارت خطے کو جنگ کی طرف دھکیلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ عالمی برادری خطے کی صورتحال پر فوری نوٹس لے۔ پاکستان کسی بھی صورتحال میں پہلا قدم نہیں اٹھائے گا۔ اگر جارحیت مسلط کی گئی تو پورے قومی عزم اور طاقت کے ساتھ بھرپور جواب دیں گے۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کا مقصد بھارت میں جاری آزادی کی تحریکوں سے توجہ ہٹانا ہے۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار موجودہ پاک بھارت کشیدہ صورتحال میں چین کا ایک بار پھر پاکستان کی حمایت کا اعادہ۔ ایوان صدر اسلام آباد میں پاکستان میں چین کے سفیر جانگ زیڈونگ نے صدر آصف علی زرداری سے ملاقات میں تعاون کی مکمل یقین دہانی کرا دی۔
दो तरफा अहमियत के उमूर बिलखुसूस पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत का भारतीय हुकूमत के हालिया गैर जिम्मेदाराना और जारहाना बयानात पर इजहार तशवीश। मुश्किल वक्त में चीन की जानिब से पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत काबिल तहसीन। भारत के इक़दामात से इलाकाई अमन इस्तेहकाम को खतरा लाहिक है। सदर मुमलिकत चीन जनूबी एशिया में अमन इस्तेहकाम के लिए हमेशा पाकिस्तान की हिमायत करेगा। दोनों मुल्कों के दरमियान पायदार दोस्ती का इरादा करते हैं चीनी सफीर। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का एक बार फिर पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना, शफ़ाफ और मोतबर आलमी तहकीकात की पेशकश का यादा। मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम से टेलीफोनिक रब्ता। भारत के इश्तियालंगेज़ रवैये और कशीदगी पर पाकिस्तान के नुक्ते नज़र पर एतमाद में लिया। पहलगाम वाक़े को बगैर सबूत पाकिस्तान से जोड़ने की हर कोशिश को मुस्तरद करते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। अमरीकी चैनल CNN के बैनुल-अक़वामी सफारती अवार्ड याफ्ता एडिटर निक रॉबर्टसन का लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा। सहाफ़ी ने भारतीय फौज के हाथों जाली मुकाबले में शहीद किए जाने वाले मोहम्मद फारूक और मोहम्मद दीन के गांव सरजीवार का दौरा किया। शुहदा के पसमानदगान समेत ऐनी शाहिदीन के इंटरव्यूज भी लिए। भारत की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल पर मुतअद्दिद मकामात पर बिला इश्तियाल फायरिंग। नकियाल, खुईरट्टा, शारदा, केल, नीलम और हाजी पीर सेक्टर्स में पाकिस्तानी पोस्टों को निशाना बनाया गया। पाकिस्तानी फौज ने भारतीय बिला इश्तियाल फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया। पाक फौज दुश्मन की किसी भी जारियत से निपटने के लिए हमा वक्त तैयार और पुरअज़्म है सिक्योरिटी फोर्सेस। बिगड़ती हुई इलाकाई सूरत हाल, भारत के साथ बढ़ती हुई कशीदगी, खुसूसन जम्मू व कश्मीर की सूरत हाल के पेश नज़र पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास बुलाने की बाज़ाब्ता दरख्वास्त कर दी। सरहदी कशीदगी न सिर्फ खित्ते बल्कि बैनुल-अक़वामी अमन के लिए भी खतरा बन सकती है। पाकिस्तान का मौक़िफ़। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और कौमी सलामती की सूरत हाल। वज़ीर इत्तलात और DGISPR का सियासी रहनुमाओं के साथ इन कैमरा सेशन। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क और खित्ते में अमन का कहाँ है। किसी भी जारियत की सूरत में दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी अताउल्ला तारड़ ने सियासी कायदीन को हुकूमती सफारती इक़दामात और रियासती मौक़िफ़ से आगाह किया। कौमी असम्बली का अहम इजलास भी आज शाम 5 बजे तलब। जनूबी एशिया की सूरत हाल और मुमकिना भारतीय जारहियत पर गौर होगा। भारतीय जारहियत और रियासती सरहद पार दहशतगर्दी पर खुलकर बात की जाएगी। हुकूमत की तरफ से कौमी बयानिया और पॉलिसी भी वज़ा की जाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर कतर पहुंच गए। वज़ीर ममलकत दाखिला शेख अब्दुल अजीज ने पुरतपाक खैर मुक़दम किया। मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर गुफ्तगू। कतर आमद पर दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। आपका दौरा ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए अहम साबित होगा। वज़ीर ममलकत दाखिला कतर की मोहसिन नकवी से गुफ्तगू। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा ओमान पुलिस व कस्टम्स हेडक्वार्टर्स आमद। पाकिस्तानी कम्युनिटी और सफारत खाने के अमले से मुलाकातें। ओमानी पुलिस और कस्टम्स के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल हसन बिन मोहसिन अशराकी से मुलाकात। इंसदाद दहशतगर्दी और स्मगलिंग के लिए ताउन को फ़रोग़ देने पर तफसीली तबादला ख्याल। जराइम की रोकथाम के लिए बाहमी ताउन और करीबी राबते बढ़ाने पर इत्तेफाक। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल से मुताल्लिक इंट्रा कोर्ट अपीलों की समाअत मुकम्मल। फैसला महफूज। मुख्तसर फैसला रवां हफ्ते सुना दिया जाएगा। जस्टिस अमीरुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की।
भारत ने बाकायदा मनसूबाबंदी से पाकिस्तान को पहलगाम हमले में मुलव्वस करने की कोशिश की। पहलगाम वाक़े के 10 मिनट बाद पाकिस्तान को मूरद इल्जाम ठहराया। भारतीय मीडिया ने बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया। दुनिया ने भारतीय बयानिए को मुस्तरद कर दिया। वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल। पाकिस्तान एटमी कुव्वत है, अपने हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना जानता है। दुनिया को बताना होगा कि पाकिस्तान को कमज़ोर न समझा जाए। भारत ने झूठे वाक़े से पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की। पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा आलमी सतह पर नाकाम हुआ। नौजवान पाकिस्तान का कल हैं, दुनिया को पाकिस्तान की सलाहियत दिखाएं। चेयरमैन वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद का मुल्तान में तलबा से खिताब। पहलगाम वाक़या भारत की सिक्योरिटी की बड़ी नाकामी। वाक़े का बगैर सबूत दुनिया के सामने मौक़िफ़ नाकाम हो गया है। पाकिस्तान ने वाक़े की आज़ादाना तहकीकात में मदद की पेशकश की है। भारतीय मीडिया रिपोर्टिंग के जरिए जंगी जुनून को बढ़ा रहा है। पाकिस्तान अमन का ख़्वाहां है, ताहम किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान। भारतीय हिंदुओं ने मोदी के फॉल्स फ्लैग का पर्दा चाक कर दिया। ऑपरेशन का मकसद अवाम की तवज्जो असल मसाइल से हटाना था। हिंदुओं को मारकर मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराकर इस साजिश से पीछे नहीं हट सकते। बिहार इंतखाबात से काबिल हमले का मकसद कश्मीर में कशीदगी से सियासी फायदा हासिल करना है। मीनाक्षी बाली ने पहलगाम हमले को मोदी हुकूमत का मंसूबा बंद फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दे दिया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग की आड़ में कश्मीर में भारतीय फौजी रियासती दहशतगर्दी जारी। मकबूजा कश्मीर में 22 साला नौजवान इम्तियाज भारतीय फौज के हाथों कत्ल। इम्तियाज को भारतीय फोर्सेज ने जेर हिरासत तशद्दुद का निशाना बनाया। इम्तियाज मजदूर था, चंद ही रोज कबल घर वापस आया। कश्मीरियों का इंसानी हकूक की आलमी तंजीमों से भारतीय फौज के मजालिम पर फौरी कार्रवाई का मुतालबा। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद कश्मीरियों पर भारतीय मजालिम में इजाफा। जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया। पहलगाम हमले के बाद निहत्थे कश्मीरी मुसलमानों को दहशतगर्द करार देकर उनको बेदर्दी से कत्ल किया जा रहा है। कश्मीरी मुसलमानों को गिरफ्तार और घरों को तबाह किया जा रहा है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग हमला मोदी का सोचा समझा इकदाम था। महबूबा मुफ्ती। पहलगाम फॉल्स फ्लैग भारतीय सिख ने मेजर गौरव आर्या की असलियत खोल दी। गुजरात और दिल्ली की तारीख पढ़ लें, वहां कभी लड़ाई नहीं हुई। अगर गुजरात और दिल्ली में लड़ाई हो तो गौरव आर्या जैसे लोग डर के भाग जाएंगे। भारतीय सिख ने गौरव आर्या की असलियत बयान कर दी है। दिफाई माहिरीन। भारतीय अवाम की गोदी मीडिया पर कड़ी तनकीद। भारत में गोदी मीडिया ने अवामी शऊर दबाकर तनकीदी सोच को जुर्म बना दिया। रिपोर्टर मोदी की तकलीफ में अंधे हो चुके हैं। बगैर तहकीक के ही हर झूठ को सच मान लेते हैं। भारतीय मीडिया के मुतासरीन मोदी के हर झूठ को सच मानकर फख्र महसूस करते हैं। सच दिखाने का दावा करने वाला गोदी मीडिया सिर्फ हुकूमती तर्जुमान बनकर रह गया है। अवाम पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के खिलाफ भारतीय अवाम की मोदी सरकार पर तनकीद जारी। हमला आवर कड़ी सिक्योरिटी के बावजूद कैसे पहुंचे? हमला आवरों का फरार होना निजाम की संगीनी पर सवालिया निशान है। भारतीय खातून वाज़ेह शवाहिद हैं। पहलगाम वाक़या भारतीय एजेंसियों की नाकामी है। पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जामात की बजाय भारत को अपनी अवाम के सवालात का जवाब देना चाहिए। दिफाई माहिरीन।
रूस का नई दिल्ली को वाज़ेह पैगाम, कशीदगी बढ़ाने की बजाय बातचीत को तरजीह दी जाए। पाकिस्तान के साथ मामलात मुज़ाकरात के जरिए हल करने पर जोर, दो तरफा मुआहिदों की रोशनी में सफारती हल तलाश किया जाए। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लावरोव की भारतीय हम मनसब जयशंकर से टेलीफोनिक गुफ्तगू। भारतीय हिंदुओं ने मोदी के फॉल्स फ्लैग का पर्दा चाक कर दिया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग का मकसद अवाम की तवज्जो असल मसाइल से हटाना था। हिंदुओं को मारकर मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराकर इस साजिश से पीछे नहीं हट सकते। बिहार इंतखाबात से कबल हमले का मकसद कश्मीर में कशीदगी बढ़ाकर सियासी फायदा हासिल करना है। मीनाक्षी बाली ने पहलगाम हमले को मोदी हुकूमत का मंसूबाबंद फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दे दिया। बलूचिस्तान मुत्तहिदा कबाइल की पाक फौज से इजहार यकजहती रैली। भारतीय आबी जारियत और पहलगाम फॉल्स फ्लैग हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत। शुरका की भारत और इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी। गयूर कबाइल का पाक फौज के शाना बशाना खड़े रहने का अज़्म। गजा में सेहूनी बर्बरियत जारी, ताज़ा हमलों में मजीद 20 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। इसराइल का गजा में ऑपरेशन मजीद तेज करने का फैसला। 60,000 रिजर्व फौजी तलब। मकबूजा मगरबी किनारे में भी इसराइल की जालिबाना कार्रवाइयाँ। काबिज फौज ने मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारकर मुतअद्दिद अफराद को हिरासत में ले लिया।